Hello students, today we will do Honeycomb 7th Standard Unit 5 Quality. Can a shoemaker be called an artist? क्या एक shoemaker है, क्या उसे हम artist कह सकते हैं? Yes, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist and the same respect for it too. Mr. Gessler, a German shoemaker settled in London, in a perfect artist, read this story to see how he devotes his life to his art. अब इसके अंदर एक मिस्टर गैसलर होता है और एक जर्मन एक नाम होता है, शू मेकर होता है जर्मन का, जो कहाँ पे सेटल हो जाता है, लंदन में सेटल होता है और उसकी आर्टिस्ट मतलब कि शू बनाता है, मीन्स जूते बनाने में वो बहुत ही एक्सपर्ट होता है। चलो आज हम ये चैप्टर पढ़ते हैं, इसका एक तरह का एक आर्ट है, उसकी कला है, वो हम आज जानते हैं। I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boots. He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. वो एक जगह पे, एक रोड पे उसकी एक शॉप थी, ओके, लंदन के, वहाँ पर उसकी शॉप थी, उसके भाई के साथ वो वहाँ रहता था, एल्डर ब्रदर अपनी शॉप पे। The shop had a certain quiet distinctions. There was no sign upon it other than the name of a Gessler brother. उन्होंने अपनी शॉप का नाम जो था गैसलर ब्रदर रखा था, ओके, मतलब कि बहुत ही डिफरेंट थी उनकी जो शॉप थी वो। एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, और उसके जो विंडो थी, जो कांच वाली जो खिड़की थी, वहाँ पर कुछ ही बूट्स वहाँ पे लगाए गए थे, शूज़ लगाए गए थे। He made only that was order and what he made never failed to fit. वो जब भी कोई वहाँ पे उसे जो भी ऑर्डर देता था वो उसके ही वो शूज़ बनाते थे, अदर कोई भी उसका कंप्लेंट नहीं कर सकता था कोई भी चीज़ के लिए कि साइज़ छोटी है, अच्छे से नहीं बनाया है, तो इस तरह का कोई भी उसे कंप्लेंट नहीं करता था। He made only what was ordered and what he made never failed to fit. To make a boot, such boots as he made seemed to me then and still seems to me mysterious and wonderful. वो जब भी कोई जूते शूज़ वगैरह बनाता था वो बहुत ही डिफरेंट होते थे, हर किसी को वो शूज़ अच्छे लग जाते थे। I remember well my shy remarks one day while stretching out to him my youthful foot, is not it awfully hard to do, Mr. Gessler, and his answer given with a sudden smile from out of the redness of his beard, it as in a dart. अब वो जो एक आता है वहाँ पर कस्टमर, वो कहता है कि मैं कब से मैं ये शूज़ पहन रहा हूँ लेकिन अभी तक उस शूज़ को कुछ भी हुआ नहीं है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी यहाँ की। It was not possible to go to him very often, his boots lasted terribly. अब इसमें जो होता है वो कहता है कि बहुत ही इम्पॉसिबल होता है मेरे लिए कि मुझे वही शूज़ पहन के मुझे कोई टेरिबल जिस प्लेस होती है वहाँ जाना होता है। Having something beyond the temporary, some essence of boots stitches into them. कोई होते हैं जो टेम्पररी खाली ऐसे स्टिचेस करके देते हैं, लेकिन आपका ऐसा नहीं होता है। On one went in, not as into most shops, by restfully as one enters a church, is sitting in the single wooden chair, waited a guttural sound, and with the tip-tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before without a coat, a little band in leather aprons, with the sleeves turned back, blinking as if awakening from some dream of boots. उस एक बूट मीन्स शूज़ एक तरह के जैसे उसे सपने में सोच रहा था कि मुझे इस तरह के शूज़ चाहिए करके, तो वो उस तरह से डिस्क्राइब करता है वो चीज़ को। एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, फिर वो उसे पूछते भी कि आप किस तरह से इस चीज़ को बनाओगे मिस्टर गैसलर। कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियंस लेदर बूट्स, क्या तुम मेरे लिए एक रशियन पैर बनाओगे लेदर बूट्स का। Without a word, he would leave me resting whence he came or into the other portions of the shop, and I would continue to rest in the wooden here inhaling the incense of his trade. Soon he would come back holding in his hand a piece of old brown leather. उसने एक तरह से एक टुकड़ा निकाला लेदर ब्राउन कलर का,
बहुत ही पुराना था। विथ आईज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क व्हाट ए ब्यूटीफुल बीज, उसे ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी। When did he go? You want them? And I would answer, oh, as soon as you conventionally can. And he would by tomorrow fortnight. Or if he were his her brother, I will ask my brother. When I would murmur, thank you, good morning, Mr. Gassler. वो बोलते हैं मिस्टर गैसलर, जो बोलते हैं गुड मॉर्निंग। ही वुड ओनली स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड एंड ही मूव टू द डोर। आई वुड हियर द टिप टैप हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स टू हीज ड्रीम ऑफ बूट्स। उसे एक तरह से लग जाता है कि मुझे जिस तरह के शूज़ चाहिए थी, वैसे वो जो आपको जैसे कि ओल्ड मैन दिखाई दे रहा है, वो उसे से बनाने की कोशिश करता है। इंसेंस मीन्स होता है द स्मेल ऑफ लेदर, कि उसकी जो स्मेल होती है लेदर की, कंपेयर टू द स्मेल ऑफ इंसेंस इन ए चर्च। जैसे कोई चर्च से बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही हो, उस तरह से उसे लगता है। वॉट ए ब्यूटीफुल पीस। व्हेन डू यू वॉन्ट दैम? फॉर्टनाइट ब्रदर। I cannot forget that day on which I had a day that which I had occasions to say to him, Mr. Gassler, that last pair of boots cracked, you know. आपने जैसे कि लास्ट आपने जिस तरह से मेरे शूज़ बनाए थे वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे, क्या आप वो चीज़ भूल गई मिस्टर गैसलर? He looked at me for a time without a reply, as if expecting me to withdraw or a qualified statement, then said, it should not have a creaky statement. It did. I am afraid you got them wet before they found themselves. I don't think so. At that he lowered his eyes as its haunting memory of those boots, and I felt sorry. I mentioned that grief joins and them bow. He said, I will look at them. Zone boots, he continually slowly are from bit. If I can do nothing with them, I take off your bill. अब जैसे कि वो शूज़ वगैरह लेने के लिए आया है, उसे जिस तरह से शूज़ चाहिए उस तरह के शूज़ उसे मिल गए। फिर वो अपने ड्रीम मतलब कि लास्ट टाइम जो उसने शूज़ लेके दिए थे तो उसकी वो तारीफ़ कर रहा होता है कि बहुत ही अच्छे थे करके। ये सब इसके अंदर बताया गया है। Don't get it all. He said they get it by advertisement, not by word. अगर हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो हमारा जो शूज़ वगैरह का है बिजनेस वो अच्छे से चलेगा, सिर्फ काम से ही थोड़ी ना होता है। They take it ID way from us who left our boots ID comes to days. Recently I have no work. Everywhere it gets lads, you will see. And looking at his lean face, I saw things I had never noticed before, bitter things and bitter struggles, and what a lot of grey hairs we are seeing suddenly in his red beard. As best I could, I explained circumstances. ओके तो ये पूरा जो चैप्टर है एक मिस्टर गैसलर जो उनकी शॉप होती है उसके बारे में ये पूरा चैप्टर बताया गया है। लास्ट में मीन्स क्या होता है कि जैसे कि वो लोग शूज़ वगैरह जो बनाते हैं, ठीक है, तो वो बहुत परफेक्ट साइज़ का बनाते हैं, जिस तरह से ऑर्डर वगैरह दिए जाते हैं तो उसी तरह से ये लोग बनाते हैं। तो पूरा चैप्टर बस उसी चीज़ के बारे में दोहराया गया है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। आई होप कि जो ये चैप्टर था आप सब रीड कर लेंगे और समझ लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।